सो लास्ट लेक्चर हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ तक किया था, बराबर। तो लास्ट लेक्चर आपने एक समझा था, उसका आंसर गलत है। क्या गलत आ रहा है भाई? मतलब टेक्स्ट टेक्स्टबुक में गलत दिया है ना। अच्छा, आप लोग क्या आ रहा है? 1.47 into 10 to minus 7। अच्छा, चलो करते सॉल्व। गूगल पे चेक किया तो राइट है। ओके, तो आप बात कर रहे हैं आई थिंक सम नंबर 1 की। नहीं टेक्स्टबुक का दिया था ना मैंने। सम नंबर 1 वही तो कह रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, सम नंबर 1 हमने देखा था, किया था। यस, तो टेक्स्टबुक में आंसर दिया है 2.94 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। और आप लोग को क्या आ रहा है? 1.47 into 10 to minus 7। अच्छा, 1.47 में आ रहा है, ठीक है, चलेगा। 1.94 आ रहा है, 1 पॉइंट की रेंज में आ रहा था, हमने टैली किया ना लोगों से। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं एक बार। ठीक है, चलो। तो देखो भाई, यहाँ पे सब में अपने को क्या दिया है? अपने को बोला है कि वी हैव टू स्फीयर्स, राइट। ये हमको सब में दिया है, टू स्फीयर्स। पॉज क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो अपने को क्या दिया भाई? टू स्फीयर्स अपने को दिया है सब में, ठीक है। और क्या बोला है? 18 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स अपने को कितना दिया भाई? 18 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू इज 18 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू। ओके, and they have equal negative charges repel each other with a force of 6 into 10 to the power minus 3. So the forces that spheres apply on each other, exert on each other, F is 6 into 10 to the power minus 3 Newton. Now the question is find the total charge on both spheres. Okay, so you have to find what is the total charge. Now first of all, sum mein it is given that the charges on both spheres are equal. So if I say charge on this sphere is Q, okay, the charge on this sphere will also be minus Q. And they both are of same nature, so this is also minus and this is also minus, let's say. Same nature. Now, according to Coulomb's law, F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 into Q2 upon R square. Okay, now F is 6 into 10 to the power minus 3, 9 into 10 to the power 9. Both charges are of equal magnitude, so Q1 and Q2 both are same. So it is Q into Q, so Q into Q is simply Q square. Upon distance is 18 centimeter, which is 18 into 10 to the power minus 2, the whole square, because it is in centimeter, so we convert that into meter. Okay, now moving on with the calculation. रुक जा बेटा अभी. Now see, here we can easily divide. This is 3, it goes with 2 and this goes with 3. Okay, so here we have 2 into 10 to the power minus 3. Here we have 18 और 3 कैंसिल होगा ना. आ रहा उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं, coming there. And here we have 3 into 10 to the power 9 Q square. And in the bottom we have 18 into 18 into 10 to the power minus 4. Okay, now this also gets cancelled out, so 3 and this is 6. Okay, now take everything here. So क्या मिलेगा अपने को? So we'll end up getting Q square is equal to 2 into 10 to the power 3, which is already here. This whole thing comes up. This is 6 into 18 into 10 to the power minus 4. Divided by this thing comes 10 to the power 9 denominator. Okay, so this is Q square is equal to 18 into 2, 36 into 6 into 10 to the power minus 3, and minus 4 is minus 7 and minus 9. Okay, so here we are getting Q square is equal to 36 into 6 into 10 to the power minus 15, sorry, 16, minus 16.
and 36 into 6 if you do 6 6 are 36, carry 3, 18, 18 plus 3 is 216. So it is 216 into 10 to the power minus 16 is q square. Now you take root on both the sides. So q will be under root of this value 216 into 10 to the power minus 16. Now the root of 10 to the power minus 16 will be simply minus 8. And 216 ka root you can find out directly from the log book. So this will be how much? So I am calculating this using a calculator, but you will getting 0.14 log के लिए. this is 14.69. That is the root. Yeah. 14.69. Yes, sir. Okay. So for simplicity, I will take this q as 14.7 into 10 to the power minus 8. For simplicity. तो इसको एक डेसिमल में नहीं करेंगे. ठीक है ना, just keep in one. तो अगर मैंने अगर 1 डेसिमल में किया तो 1.27 into 10 to minus 9 आएगा कि 7 आएगा? नहीं, माइनस 8 ही आएगा ना, एक ही डेसिमल किया हमने शिफ्ट किया. एक डेसिमल आगे. अच्छा, 1 डेसिमल प्लेस इज ऐसा तो माइनस 7 में होगा. मेरा आंसर राइट है. रुको ना एक मिनट, रुको तो एक मिनट, अभी तक खत्म कहाँ हुआ है. सो अच्छा, तो अगर हम लोग उसको 1 डेसिमल प्लेस में शिफ्ट करेंगे, विच इज अ साइंटिफिक नोटेशन. ओके, सो लेट्स डू दैट. So let's keep it. So Q will be 1.47 into 10 to the power minus 7 coulomb. This is the charge on sphere. Now hold on. Now the question they have asked is find out what is the total charge on both the sphere. So what is total charge then? Q square. Yes. So total charge will be 2 times of Q. Because charge on this sphere is Q. On this is also Q, so Q plus Q will be 2Q. So to multiply this value by 2, so you will get 2 into 1.47 10 to the power minus 7. So this is 2 into 7 is 14, carry 1, 4 2s are 8, 9, 2.94 10 to the power minus 7 coulomb. आ गया स्टूडेंट्स टोटल चार्ज? क्या हुआ? हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा वेरिएशन टेक्स्ट बुक में है. द ओल्ड एडिशन में बहुत सारे चैप्टर्स में आप देखोगे द आंसर विल नॉट मैच विद द कैलकुलेशन. ओके, सो देयर आर मेनी प्रिंटिंग एरर्स, आंसर के एरर्स है इन द टेक्स्ट बुक. ओल्ड न्यू एडिशन में भी अभी तक है, कुछ रेक्टिफाई नहीं किया, कुछ रेक्टिफाई हो गया है. The book which I am referring right now is an older edition में, जो बुक से देख रहा हूँ ना अभी, वो ओल्डर एडिशन वाला है. ठीक है, वो नया एडिशन में भी कुछ है चेंजेस. सो बिट, चलो ठीक है. सो दैट इज द सम जो लास्ट टाइम लोग कर रहे थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric field. Now what is a field? Now student, remember one thing. In nature we have two type of forces. One is called as a contact force and another is called as non-contact force. Okay, ये हम लोगों ने laws of motion में भी स्टडी किया था. In the chapter called laws of motion we discussed this thing, that forces are of two types, the contact one and the non-contact one. What are contact forces? So it's very simple, नाम में काम छुपा हुआ है. Contact force का मतलब क्या होगा? The bodies will exert force on each other when they come in contact with each other. Simple. Like suppose I have to apply force on this remote, so I have to touch this remote. I have to get in contact with this remote. Number one. Second, so there are another type of forces which are called as non-contact forces. In non-contact forces, the contact or being in contact with each other is not necessary. Even without contact, the bodies can exert force on each other. The prime example, the best example for non-contact force is a gravitational force. That Earth exert gravitational force on all the objects
whether they are in contact with the earth or not. मतलब यहां पे कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है. Even though objects are not connected, yet the force is exerted. So wherever there is a concept or wherever there is a situation where bodies exert force on each other, ये बैच में हाँ. So wherever there are cases where the bodies exert force on each other without coming in contact, there will be a concept of field associated. देखो जहां भी बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती है विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, वहां पे हमेशा आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट मिलेगा. लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. So even in magnet, the magnet exert force on other metallic objects even though they are not in contact with each other. तो वहां पे मैग्नेट क्या करता है सर? मैग्नेट अपना खुद का क्या क्रिएट करता है सर? एक फील्ड क्रिएट करता है. अच्छा सर, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मेटालिक ऑब्जेक्ट आता है तो मैग्नेट उसके ऊपर क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स. The same thing happens with the gravity also. We all are right now in the Earth's gravitational field and therefore Earth is exerting force on us. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन अ फील्ड. विच फील्ड? सर ग्रेविटेशनल फील्ड. अब जैसे मैं ड्रॉप करूंगा तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके इसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो सेम थिंग हैपेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल. अभी हमने कूलम्स लॉ से क्या स्टडी किया सर? कूलम्स लॉ का बेसिक फंडा क्या है सर? वी हैव वन चार्ज, लेट अस से चार्ज इज q1 at certain distance apart, not in contact, at certain distance apart there is another charge q2. let us say iska nature is positive, let's say iska nature is also positive. So say they are not in contact with each other, yet they repel each other, yet they apply force on each other. That means the charges are also creating a field around itself. और अगर कोई चार्ज फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सो इट इज द स्पेस और इट इज अ रीजन अराउंड a stationary charge where other charges experience an electric force. Okay, so electric field is a region or it is a space around a stationary charge where other charges will experience an electric force. तो फील्ड कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेस, एक रीजन है अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज. स्टेशनरी चार्ज मींस द चार्ज विच इज एट रेस्ट. और उस रीजन और उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, इफ अनदर चार्ज एंटर्स दैट रीजन, इट विल एक्सपीरियंस एन electric force, and that electric force can be repulsive also, that electric force can be attractive also. That purely depends on the nature of charge. So suppose I have a positive charge located at this position, let us say charge is q. अब ये चार्ज स्टेशनरी है, it is not moving. So since it is not moving, it will create a space around itself. It will create its own region, it will create its own space. अब इस स्पेस में, इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा, कहीं से भी करेगा, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट राइट, कहीं से भी एंटर करेगा, तो जो चार्ज एंटर किया है उसको क्या एक्सपीरियंस होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स. अच्छा सर, अगर चार्ज इज आउटसाइड दिस स्पेस, आउटसाइड दिस रीजन, तो क्या होगा? सर नथिंग विल हैपन. This charge will not exert force on another charge. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चा, because electric field is a limited range. Electric field has a limited range. उसका एक typical range है. मतलब after certain distance,
that field becomes ineffective. It is very similar to magnet. Like for an example, अगर सपोज कर लो स्टाइलस नहीं है मैग्नेट है, सपोज कर लो मैग्नेट है, ओके। अब मैं मैग्नेट को रूम के इस साइड पे होल्ड करके रखा हूं और मैंने एक मेटालिक ऑब्जेक्ट को रूम के बाहर रखा है, तो क्या ये मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्या तो क्या इसका मतलब मैं ये निकालूं कि दिस मैग्नेट हैज स्टॉप क्रिएटिंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड? नहीं नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड तो है सर, तो क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है? सर बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड द रेंज ऑफ द फील्ड। तो फोर्स तभी तक एग्जर्ट होगा जब तक ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? फील्ड के अंदर है। If the object is outside the field, it won't be able to exert force. The same thing happens here also. So since field has a limited range, so it can exert force till certain distance only. So if the charges are very, very far away from each other, they will not exert force on each other. The force will become negligible at a very, very large distance. अरे सर ये तो इनडायरेक्टली आप कूलम्स लॉ ही बता रहे हो। हाउ? अरे यार कूलम्स लॉ में हमने नहीं पढ़ा बेटा। कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स आप लोग बताओ, फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कूलम्स लॉ में? हमने पढ़ा कि द फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स क्या होगा बेटा? डिक्रीज। अगर ये आर का वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, इनफाइनाइटली जीरो। So if distance become infinitely large, the force will become zero. So as the distance tends to infinity, force tends to zero. That's what the concept of field is. Okay. Now the strength of any field, how strong that field is, strength of an electric field is measured, it is measured in terms of applied force. That means, what does this statement mean? इसका मतलब क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको हम फोर्स के टर्म में मेजर करते हैं। ग्रेटर द फोर्स, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज पे जितना अमाउंट का फोर्स लगेगा उतना ही स्ट्रांग हमारा क्या होगा भाई? फील्ड होगा। अरे सिंपल चीज है। देखो अगर मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं आप लोगों से पूछूं कि यार बताओ ये मैग्नेट स्ट्रांग है कि वीक है, तो आप कौन से पैरामीटर पर जज करोगे ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रांग या वीक है? व्हाट पैरामीटर यू विल जज दैट अ मैग्नेट इज अ स्ट्रांग मैग्नेट? दूसरा मेटल ऑब्जेक्ट उसके पास हाँ, और वो तो सब मैग्नेट अट्रैक्ट ही करेंगे ना। कोई मैग्नेट स्ट्रांग है मतलब स्ट्रांग मैग्नेट है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है। सो ऑन व्हाट पैरामीटर यू विल जज कि ये मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन निकलता है इसका मतलब फोर्स ज्यादा है कि मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट को इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज। सो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा बेटा? अपना मैग्नेट होगा। सेम लॉजिक यहां पर भी, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सेम थिंग, ठीक है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड, it is measured in terms of the applied force. Greater the force, greater will be the strength of electric field. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम एक और नाम से बुलाते हैं और उसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। And electric field intensity is a vector quantity. It is denoted by capital E. So strength of electric field is measured in terms of a quantity called as electric field intensity. मतलब सिंपल भाषा में क्या मुझे कहने का मतलब है कि नॉर्मल लोग जो फिजिक्स में नए हैं, न्यू इन फिजिक्स, जैसे आप लोग के लिए दिमाग में क्या चलेगा? स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
हम जैसे लोग जो फिजिक्स बहुत साल से जानते हैं, हम लोग उसको टेक्निकल टर्म में क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। है दोनों सेम चीज, बस ये टेक्निकल टर्म है। तो समझने के लिए जब भी मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दिमाग में क्या चमकना बनता है? किसकी बात हो रही है? स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है सर। अब उसको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना बुला के व्हाट आर वी कॉलिंग इट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड फर्स्ट, फिर डायरेक्शन पे आते हैं, ठीक है? सो नाउ द मैग्नीट्यूड of electric field intensity is defined as force acting per unit charge. Force acting per unit charge. So the magnitude of electric field E is given by formula force acting per unit charge. It is F upon Q. तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम लोग ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है भाई ऐसा यूनिट? इसका ऊपर फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नीचे चार्ज, चार्ज का क्या रहेगा? कूलम। तो यूनिट क्या रहेगा भाई इसका? न्यूटन पर कूलम। That is the SI unit of electric field intensity. Okay, मीनिंग समझो इसका, मीनिंग समझो, ठीक है? इधर ध्यान। अब सपोज कर लो कि यहां पर मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है? चार्ज का वैल्यू है 10 कूलम। चार्ज का वैल्यू है 10 कूलम। अब इस 10 कूलम के चार्ज पे सपोज कर लो एक फील्ड ने फोर्स लगाया, एंड दैट फोर्स इज ऑफ 100 न्यूटन। That force is of 100 न्यूटन। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जिस फील्ड में उस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे सर? सिंपल है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सर फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। सर फोर्स इज ऑफ 100 न्यूटन, चार्ज इज ऑफ 10 कूलम, सो आंसर विल बी 10 न्यूटन पर कूलम, which means that this particular field will exert a force of 10 Newton for every 1 coulomb of charge. मतलब उस फील्ड में अगर हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज रखेंगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन। सर अगर मैंने 2 न्यूटन रखा तो कितना लगेगा? अरे यार ओ भाई साहब, 10 न्यूटन पर कूलम का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 न्यूटन पर कूलम का फोर्स लग रहा है, मीनिंग व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 10 न्यूटन पर कूलम, मीन्स व्हाट? एवरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर मैं 1 कूलम ऑफ चार्ज रखता हूं पर कूलम मीन्स व्हाट? अरे मैं बोल रहा हूं टमाटर का भाव है 20 रुपीज पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलो का ना, पर मीन्स व्हाट? 1। तो अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर कूलम, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 कूलम पे चार्ज, 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? 2 कूलम हुआ तो 100 हुआ तो 1000 न्यूटन, वही बोल। 10 कूलम हुआ तो कितना लगेगा? 100। समझ में आ रहा है बात अपने को? सो फॉर एवरी 1 कूलम ऑफ चार्ज प्लेस इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड द डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of force. That means जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मेरा फील्ड भी रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज कर लेते हैं कि दिस इज वाई एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, चलो एक्स एंड दिस इज वाई। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और यहां पे मैंने एक चार्ज को रखा है, दिस इज द चार्ज। ठीक है, कंपैरिजन के लिए यहां पे मैं और फील्ड रख रहा हूं। ये दिस इज अगेन वाई एक्सिस, अगेन एक्स एक्सिस, यहां पर भी एक चार्ज है, यहां पर भी एक चार्ज है। लेट अस से यहां पे चार्ज का वैल्यू है 5 कूलम,
and there is a force of 20 Newton acting on it. Okay. Now in this particular case, the charge is of 1 coulomb. Instead of 1 coulomb, I'll keep it as 0.5 coulomb. And there is a force of, let's say, 10 Newton acting on it. दो सिचुएशन है अपने पास. इन दोनों चार्ज को मैंने अलग अलग फील्ड में रखा है. यहां पे फील्ड अलग है, यहां पे फील्ड अलग है. अभी हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, नंबर 1. एंड सेकंड, हमको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर. लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड. लेट अस से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाउ मच? E2. लेट्स से वन इज E1, अनदर इज E2. ठीक है. अच्छा, E1 कैसे फाइंड आउट करूंगा सर? वेरी सिंपल. E1 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. सर हाउ मच इज द फोर्स? 20 न्यूटन. सर हाउ मच इज द चार्ज? 5 कूलम. तो सर आंसर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? 4 न्यूटन पर कूलम. अच्छा सर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? So the direction of electric field is along the direction of electric force. मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड भी होगा. ओके, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? along x एक्सिस. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इज 4I कैप न्यूटन पर कूलम. याद आ रहा है I कैप? यूनिट वेक्टर. हम लोग ने वेक्टर्स एंड स्केलर्स में पढ़ा था. I कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस. इधर कंपेयर करते, E2 निकालते. आप लोग बताओ E2 का वैल्यू कितना आएगा? हाँ, 10 न्यूटन अपॉन कितना चार्ज है? 0.5. तो E2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चा लोग? हाँ, कितना आएगा? 10 अपॉन 0.5 कितना होगा? 20. तो दिस विल बी 20 न्यूटन पर कूलम. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन कहां है सर फोर्स का? तो फोर्स का डायरेक्शन इज अलोंग y एक्सिस. तो यहां मैं E2 को क्या लिखूंगा? E2 इज 20 J कैप न्यूटन पर कूलम. अगर आप कंपेयर करोगे कौन सा वैल्यू बढ़ा है? 20 और 4. so of course 20 बढ़ा है. That means here field is strong as compared to this. So I will say E2 is technically stronger than E1. तो यहां पे फील्ड स्ट्रांग है, यहां पे फील्ड वीक है. तो कोई भी फील्ड स्ट्रांग या वीक किस पे डिपेंड करेगा बच्चा लोग? फोर्स के ऊपर. कितना फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है. जितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना स्ट्रांग क्या रहेगा बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल. कभी भी अगर कंफ्यूजन होगा कॉन्सेप्ट में तो दिमाग में मैग्नेट को लेके आने का, मैग्नेट के बारे में सोचने का कि कोई भी मैग्नेट पावरफुल कैसे होगा. हम कैसे डिफाइन करेंगे कोई मैग्नेट पावरफुल है या कोई मैग्नेट स्ट्रांग है, कोई मैग्नेट वीक है? So it purely depends वो कितने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. मैग्नेट जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को उतना स्ट्रांग मैग्नेट होगा. सेम थिंग गोज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. अच्छा, अभी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. मतलब क्या है? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकता हूं. कि सपोज कर लो अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़े कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance 20 सेंटीमीटर from a charge. तो सपोज यहां पर मेरा एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है. ठीक है. लेट चार्ज का मैग्नीट्यूड इज +Q. I want to find out what is the strength of electric field which is at point P situated at a distance R from it. मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? R का डिस्टेंस. तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस R के डिस्टेंस पर what is the strength of electric field. क्या करना है इसके लिए? बहुत सिंपल है. देखो स्टूडेंट्स, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कौन से टर्म में मेजर होगा? सो इट विल बी मेजर इन टर्म्स ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स. तो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहां पे अज्यूम करूंगा. क्या अज्यूम करूंगा? मैं यहां पे अज्यूम करूंगा कि सपोज कर लो यहां पर मैंने छोटे से चार्ज को भेज दिया, स्मॉल चार्ज. दैट स्मॉल चार्ज इज Q, छोटू Q, पॉजिटिव इन नेचर है. नहीं वहां पे, मैं वहां पे रख दिया. इस चार्ज का काम क्या है? व्हाट इज द काम ऑफ दिस चार्ज? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस चार्ज?
तो इसका काम ये है कि ये पता करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और उस फोर्स के बेसिस पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई जब यहाँ पे चार्ज ही नहीं होगा तो फोर्स किस पे लगाएगा वो? अब जब फोर्स ही नहीं मिलेगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालूंगा? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैंने यहां पे एक सपोज कर लिया कि सपोज कर लो यहां पर एक चार्ज है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बुलाते हैं। ऐसे चार्ज को हम लोग क्या बुलाएंगे स्टूडेंट्स? टेस्ट चार्ज। जिसका काम टेस्टिंग का है, ये टेस्ट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, वो टेस्ट करेगा। अगर सपोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा एंड दैट फोर्स इज एफ। ओके ग्रेट, फोर्स लगा एफ, गुड। एक फोर्स का वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सो यूजिंग कूलम्स लॉ, ये फोर्स का इक्वेशन निकालते हैं। फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा? F इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द फर्स्ट चार्ज? सर कैपिटल Q। व्हाट इज द सेकंड चार्ज? सर स्मॉल q, डिवाइडेड बाय, सर डिस्टेंस क्या है इनके बीच का? r, सो इट विल बी r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन बोथ द चार्जेस। ओके, कूलम्स लॉ अप्लाई कर लिया मैंने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दो यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी फोर्स का वैल्यू पुट कर दो। फोर्स क्या मिल रहा है सर? 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। द होल इज डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बच्चा लोग? Q। अब ये स्मॉल q एंड द स्मॉल q कैंसल्स आउट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को मिलेगा एज 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। So this is the formula of electric field in terms of distance. तो अगर क्वेश्चन आता है अपने को कि what is the electric field at a distance 12 centimeter from the charge, 20 centimeter from the charge, 30 centimeter from the charge, अगर हमने डिस्टेंस से पूछा है what is the electric field at certain distance, तो you will apply this formula. अगर अपने को न्यूमेरिकल में बोला कि a charge of some coulomb experiencing a force of 30 न्यूटन, अगर फोर्स का बोला है अपने को, बस हमें फोर्स दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? F अपॉन Q। तो बहुत क्लियर डिमार्केशन है स्टूडेंट, बहुत क्लियर आइडिया है। अगर न्यूमेरिकल में अपने को डेटा दिया है फोर्स, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F अपॉन Q। अगर अपने को डिस्टेंस के टर्म में पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्टेन डिस्टेंस, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे Q अपॉन r स्क्वायर वाला। और यहां से हमें क्लियर मालूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वैसे ही डिक्रीज होते रहेगा। मतलब फील्ड विल बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। द क्लोजर यू आर स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड, द फार्दर यू आर वीकर विल बी द फील्ड। वेरी सिंपल आइडिया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सम करेंगे इसके ऊपर। हाँ, तो क्वेश्चन अपने को लिखना है यहां पे, एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज of 8 into 10 to the power minus 8 coulomb at a distance of 5 centimeter from it। चलो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबको ठीक है? सबको आया? कैसे करना है इसको? देखो फॉर्मूला अपना अभी हमने जो डिराइव किया वही फॉर्मूला लगेगा। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का डायरेक्ट वैल्यू है 9 10⁻⁹। चार्ज अपने को दिया है 8 × 10⁻⁻⁸
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपने को दिया है 5 सेंटीमीटर, सो 5 10⁻⁻² द होल स्क्वायर। ओके, 9 इंटू 8 इज 72, ये हो गया 72 पावर, दिस इज 9 एंड -8 सो इट विल बी 10। नीचे आपको आएगा 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 10⁻⁻4, -4 will go up, it will become +4, so you'll get 72 upon 25 10⁻5, सिंपल। अच्छा, मैंने पहले ही बोला जब भी आपको 25 5 दिखता है तो इजी करने के लिए क्या करने का, अगर 5 या 5 का मल्टीपल आपको डिनोमिनेटर में मिलता है तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करने का, इसको हाँ मल्टीप्लाई करने का, इसको कन्वर्ट करने का 10 में या फिर 100 में। जैसे कि ये 25 को अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करूं, यहां मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 7 4 28 288, सिंपल हो जाएगा। बट नीचे आपका आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻ कितना है 5, 288 अपॉन 100 सिंपल है, सो इट इज 2.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो ये पूरा डिवीजन आपको करना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन अपना। सो ई विल बी 2.88 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 5, सिंपल हो जाएगा। सो रादर देन पूरा वो डिवीजन घोल के सॉल्व करने से बेटर है मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट इजीली अपने को आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट करते आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, चलो लिखो। ये थोड़ा सा बढ़िया वाला है। Okay, three equal charges of 10 into 10⁻⁻8 coulomb. 3 equal charges of 10 into 10⁻⁻8 coulomb are located at the corners of a right angle triangle whose sides are 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter respectively. Find the force exerted on the charge. Find the force exerted on the charge located at 90-degree angle. ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर अपने को दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहला कूलम्स लॉ का, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन द चार्जेस, दैट इज तो है। दूसरा हम लोग यहां पर वेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। कैसे यूज होगा वो देखते हैं। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले आप वो फॉर्मूला याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, जो आप लोगों ने स्टडी किया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के टाइम। एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को साथ डिस्कस किया था, R इज इक्वल टू 2pq cos थीटा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब उसमें cos थीटा क्या था वो भी याद करना है आपको। क्या था cos थीटा? क्या था? एंगल बिटवीन p एंड q। वेरी गुड, ये दो चीज क्लियर होनी चाहिए अपने को। ठीक है, अब इधर आओ। अब क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को, पहले क्वेश्चन को दिमाग में क्लियर रखो,
एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो, चीजें बहुत इजी है, बस आप लोग चीजों की क्लैरिटी प्रॉपर से रखते नहीं हो लाइफ में। क्लैरिटी रखो, बहुत सिंपल। क्या पूछा आपने, क्वेश्चन क्या पूछा? We have to find the force फोर्स कहाँ पे? exerted on a charge located at 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला कौन, मतलब इसकी बात हो रही है? ठीक, चलो ठीक है, देखो बहुत सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। चलो इस पे फोर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब फिर कुछ से क्वेश्चन पूछो, ये इस पे फोर्स लगा कौन रहा है? कौन लगा रहा होगा फोर्स? ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, साइड वाला। तो अगर मैं नाम दूं, अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, और अगर ये पॉइंट सी है, तो ए और सी लगा रहे। वेरी गुड, खुद से आंसर है आपने को। फिर दूसरा क्वेश्चन खुद से वापस पूछो कि सर कौन से डायरेक्शन में लगा रहे? अब ए वाला किधर लगा रहा है? नेगेटिव जे इधर लगा रहे, नीचे की तरफ। वेरी गुड, तो ये मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, अब इस वाले फोर्स को जो ऊपर वाले ने लगाया है, ए वाले चार्ज ने लगाया है, मान लो इस फोर्स को मैंने नाम दिया F1, बराबर, इसको नाम अपन ने क्या दिया? F1। सी वाले ने जो फोर्स लगाया वो कहां पे लगाएगा? नेगेटिव x, मतलब इस साइड पे, लेफ्ट की तरफ, बराबर। सही जा रहा है आप लोग, एकदम बढ़िया। ठीक है, इस वाले फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F2। सही है। अब अगर आप F1 और F2 को देखोगे तो क्या ये दो वेक्टर्स का काम कर रहे हैं? सर ऑफ कोर्स वेक्टर ही तो है, फोर्स तो वेक्टर ही है। सर ये दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं? यस। तो सर यहां पे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर के अकॉर्डिंग इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? सर इनका जो रिजल्टेंट होगा, इट विल बी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, सो दिस विल बी द रिजल्टिंग फोर्स। अरे बरोबर की नहीं? तो मान लो रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा भाई अपना? F। तो F का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर F का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ, हाँ वेरी गुड, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब देखो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? 90। तो यहाँ पे cos क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 90। और cos 90 का वैल्यू 1 होता है, बरोबर की नहीं? हाँ बरोबर, 1 होता है। हाँ, 0 होता है। ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा भाई अपना? 0। तो यहां पर अपने को सिंपली f का वैल्यू क्या मिलेगा? सर f विल बी सिंपली अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आपको F1 और F2 निकालना है। F1 कैसे निकालेंगे? सर ये दो चार्ज के बीच का फोर्स है, आओ निकालते हैं। तो F1 कैसे निकलेगा? तो सर F1 निकलेगा 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा सर यहाँ पे दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, विच इज 10 इंटू 10⁻⁸, विच इज 10⁻⁷। अब उसका स्क्वायर कर दो, 10⁻⁻7 का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज दोनों सेम है। डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है? 15 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 15 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, F1 आ जाएगा। सिमिलरली अभी F2 निकालना है अपने को। तो F2 कैसे निकालेंगे? सर वही कहानी, F2 विल बी 9 इंटू 10⁻⁹। सर चार्ज वही रहेगा 10⁻⁻7 द होल स्क्वायर, लेकिन अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? 20 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी 20 इंटू 10⁻⁻2 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को यहां पुट कर लो, आंसर आ जाएगा आपको। चलो उसके बारे में, ठीक है, उसके बचपन से मैं उसका दोस्त था। चलो कैलकुलेशन देखो, अब कोई लंबा नहीं, देखो चलो नाकारो, ओ सभी नाकारो, इधर देखो, ये देखो, ये 9 इंटू 10⁻⁹। अभी देखो -7 और उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? -14। बढ़िया। नीचे आप 15 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 220। या फिर ऐसा कर लो, 15 इंटू 15 कर लो, और ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -4। अब ये सिंपल कैलकुलेशन जाएगा अपने, ठीक है, जैसे कि ये 3 3s are 9 एंड 3 5s are 15, फिर 3 1s एंड 3 5s। ओके, नाउ क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर? सर अपने को यहाँ पे मिलेगा 1। अच्छा, ये -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा। सो 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13, और वो 13 और -14 हो जाएगा 10⁻⁻1, और यहाँ पे आएगा 25।
अब इंटू फोर कर लो, तो आपको मिलेगा 4/100 10⁻⁻1। मैंने बोला था ना कि अगर 25 या 5 आपको मिलता है तो ऐसा करना कि इसको 100 में कन्वर्ट कर लो, इट विल मेक योर कैलकुलेशन इजी। अभी वो 2 मिनट पहले पिछले सम में बताया था मैंने। तो 4/100 आया, तो 4/100 मतलब मैं इसको लिखूंगा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन में। ये चाहता था ऐसे आंसर है, देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं, स्वीट लग रहा है कि नहीं, क्यूट लग रहा है कि नहीं, लग रहा है। क्यों 0.004 लिखना है ना, साइंस वाले ने हमको सिखाया गया ना 10 का पावर। तो अबे वापिस इधर आओ, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ ये वापस हो जाएगा -14, और नीचे आपके पास है 20 का स्क्वायर। तो ये 20 मतलब कितना हो जाएगा, सपोज हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -4। सही है, ठीक है। अब +4 ऊपर जाएगा, वही आएगा 9 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 4 इंटू 10⁻², वही आया 9/4 इंटू 10⁻³ सही है। अब इस वैल्यू को f वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो कि f है अंडर रूट में f1² प्लस f2²। अब f1 की वैल्यू है सर 4 10⁻³ का स्क्वायर, और सर ये मेरे को मिला था 9/4 10⁻³ का स्क्वायर, यही मिला था मेरे को। अब स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। किसी रामानुजन ने मेरे क्लास में लिख दिया इसको 61 है भाई, नाम नहीं लूंगा लेकिन ठीक है। अब 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 18 आएगा बराबर। 18 बोल भी रही है 18 है, 81/16 वापिस से -6। अब यहां से 10⁻⁻6 को तुम क्या ले लोगे, कॉमन। हाँ, ये -6 को कॉमन ले लो दोनों जगह से। अब 10⁻⁻6 का रूट कितना आएगा, 10⁻⁻3। और आपके पास अंदर अभी क्या बचा, f अंडर रूट में ये बचा 16 प्लस 81/16 और 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करो तो आपको आएगा 16 इंटू 16 प्लस 81 अपॉन 16 10⁻⁻3। 16 का स्क्वायर कितना होगा अपना 256, तो 256 प्लस 81, 16 का रूट सीधा सीधा 4 आएगा, 10⁻⁻3। ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा 7, 8 और 5 हो जाएगा अपना 13, कैरी 1, 337 अपॉन 4 10⁻⁻3। अब खाली लास्ट स्टेप में आपको रूट ऑफ 337 ढूंढना है, डिवाइड बाय 4 करना है, तुमको तुम्हारा आंसर आ गया। कितना डिफिकल्ट था ना कैलकुलेशन, साले मारूंगा ना एकदम, इनलास्टिक कोलिजन में जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है। अब निकालो अभी ये लॉग से, क्या निकाला है, 3370 करके 33 का 7 है। साले टर्फ को तेरे को स्टम्प बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। लॉग नहीं सिखाया, क्या नहीं सिखाया लॉग, तो नया है ना, तुझे बोले दो। लॉग बुक लेके आए हो, हाँ निकालो निकालो निकालो, लॉग बुक निकालो। कैमरा सब, अबे सच में बोल रहा हूँ गधे, निकालो लॉग बुक निकालो। बैठे यहाँ पे। हाँ इधर देखो, रूट ऑफ 337/4 अपने को करना है। अब देखो उसको करने के दो तरीके, सुनो भाई ध्यान से। स्क्वायर रूट के ना तुम लोग को दो टेबल मिलते हैं, स्क्वायर रूट के दो टेबल है, देखो दिखा, एक ऊपर क्या लिखा है वहां पे देखो 1 to 10, और दूसरा टेबल होगा 10 to 100। लॉग बुक में अगर आप ओपन करोगे तो आपको दो टेबल मिलेंगे स्क्वायर रूट के, एक होगा 1 to 10 और दूसरा होगा भाई 10 to 100।
अब अपना जो नंबर है किसका रूट निकालना है अपने को 337। अपना लॉग बुक में जो रूट अपने को डायरेक्ट दिया है वो सिर्फ 100 तक ही दिया हुआ है 99 तक। बाकी 100 तुमको पता ही है 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100 का स्क्वायर 10 होता है। तो अभी हम क्या करेंगे देखो अब ऐसे केस में जहां पे आपका वैल्यू जो है आपके टेबल के बियॉन्ड है तो इसका मतलब ही नहीं आप यूज नहीं कर सकते टेबल को। देखो हम सिंपल सा यहाँ पे फंडा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अब 337 को मैं लिख सकता हूं 3.37। तो तुम बोलोगे सर ये तो अन्याय है 337 का 3.37 कर दिया वैल्यू चेंज हो गया मतलब नहीं हुआ वैल्यू। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। अरे समझा क्या किया मैंने सब सेम ही है भाई सब सेम ही है। वैल्यू अभी तक अपना सेम है वैल्यू ना चेंज नहीं हुआ 3.37 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे वापस कितना मिलेगा 337। लेकिन सर मैं इसका रूट निकाल सकता हूं 3.37। यस हम टेबल ओपन करेंगे 1 to 3 वाला अरे सॉरी 1 to 10 वाला। अरे स्क्वायर रूट का टेबल होगा स्क्वायर का टेबल 1 to 10 वाला। वो देख करिए कैमरा संभाल कैमरा संभाल कैमरा संभाल। हाँ स्क्वायर रूट का टेबल वो खाली एक्टिंग कर रहा है लॉग बुक खोल के। जो क्या लगा पहली बार उसने टारगेट लाया मेरे को नहीं पता वो क्या लेके आया। मैं कुछ बोला अलग के लेने प्राणी को। तो लॉग ऑफ 1 to 10 स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 10 वाला टेबल है उसमें जाओ 3.3 अंडर 7 देखो 1.836 बढ़िया। ये रूट आ गया। क्या करना है देखो अभी बता रहा हूं जिनके पास लॉग बुक नहीं याद रखना स्क्वायर रूट का टेबल होगा उसमें होगा 1 to 10 वाला। स्क्वायर रूट का टेबल ही नहीं है बुक में। किसके पास है ना वो ये लोग सब एक साथ बोलने में बोला बुक में नहीं वो समझ गया यहां से दिखते वैल्यू भी आसपास ही है ना इतना ही रहेगा। सो 3.3 देखने का और अंडर 7 जैसे लॉग में 3.3 अंडर 7 देखोगे ये आंसर आपको मिलेगा 1.836। सिंपल है। अच्छा 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा सर 10। ऊपर यहाँ पे 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना है सर 4। तो 8.36 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर 18.36 डिवाइडेड बाय 4 10 रेज टू पावर -3। अब इसको डिवाइड कर दो 4 डिवाइड बाय 4 16 कैरी 1 2 आएगा 4 5 20 बचेगा 3 4 9 36 4.59 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन इज द फाइनल आंसर। बोला बोलो अब लिखो जिनको नहीं आ रहा था। ये वाला ये प्रभु 0.3 यहाँ पर है 7 है। ये देखिए जरा मेरा 3 पॉइंट दिख रहा है 3 के वजह पॉइंट है मतलब 3.3 ये हो गया 1.8 अपना 3.3 क्या है 7 सो 3.3 फिर यहाँ जा 7 के अंडर देख वैल्यू कितनी दिख रही है तेरे को 20। अब इसको 20 से ऐड कर दे सो कितना आएगा 1.837 नियर बाय आ गया आया। हाँ मैं फ्री हूँ ठीक है चल से ओके क्या हाँ है और है बहुत है।
हाँ पुश करने के लिए हम लोग प्रॉपर यूज मैं सिखा तो दूं, फिर उसके बाद जब तुम लोग करते हो हरकत, क्या तभी आज जागे हो तुम लोग, तभी तो। इससे पहले कभी समझ में आया ही नहीं कि लॉगबुक नाम की भी कोई वस्तु होती है। देयर एग्जिस्ट अ बुक कॉल्ड लॉगबुक, लॉगरिथमिक बुक, पता ही नहीं आज तक। वो तो कल एग्जाम है तो आज याद आया अपने को, आज ही अरे आ रहे हो आप। 3 बजे। हाँ ठीक है, जाओ। देख भाई मेरा लेक्चर है बैक टू बैक, मैं फ्री नहीं। आज तुम लोग अपनी अपनी गलती तुमने की सजा भुगतो पहले, उसके बाद में सिखाऊंगा आज। हाँ आज थोड़ा कम मार्क्स आएंगे, थोड़ा सा जान जलेगा तुम लोग का, तब मजा आएगा। उसके बाद मैं सिखाऊंगा। मैं नहीं जलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर ठीक है, कोई दिक्कत ही क्या है मेरे को, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं ना। ये देखो एक और है, अरे जैन वाली ना, ये तो जैन वालों का मस्त है भाई, उनकी लाइफ का एक ही अचीवमेंट है कि जैन ज्वाइन कर लिया हमने। उनको बस इसी बात के वो लोग डिलीलू में रहते हैं कि हमने जय हिंद ज्वाइन कर लिया, मतलब हम ही बेस्ट है। बस लाइफ का क्या अचीवमेंट है सर? जय हिंद का एडमिशन मिल गया। अच्छा, रेज्यूमे में भी लिख देंगे व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, जय हिंद। खाना कहाँ का अच्छा है? जय हिंद। फेस्ट कहाँ का अच्छा है? जय हिंद। वो तो है, देखा उनको सब लगे हम ही हैं बस, और कोई नहीं है। केसी केची है, कौन है राज? ये टिपिकल शोबो जो आपको देखना है ना, आपको जय हिंद में मिलेगा। टिपिकल शोबो, हाय चानिया इसी वाले मिलते। ठीक है ना, ये लोग जिस दिन टैक्सी से आगे, इनको लगता है इनकी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है। यू नो व्हाट, आई ट्रैवल विद टैक्सी टुडे। ये ऐसे लोग मिलते हैं केसी में। और उनका उनका बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई उन सबका एचआर है। हाँ, सबका बड़ा भाई एचआर है भाई, तुम लोग को। हाँ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात अगला क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक ओपन करो। हाँ, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 206, क्वेश्चन नंबर है 3 का 3। क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd। आई को भाई स्कूल में वहीं से पीछे टेक्स्ट बुक। बस बहाना चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठने का। क्या हुआ है तो है, पढ़ाई करो अपना। दोस्ती हो लोगी अच्छी सी, बॉन्डिंग है और क्या। ब्रोमांस है उनके जो, ब्रोमांस। उसके चक्कर में क्या क्या सुनना पड़ रहा है मेरे को। जब से तेरे दोस्ती की है कितना सुनाई दे रहा है। क्वेश्चन 3 का 3 हो गया, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता।
नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, पढ़ो। 4 चार्जेस, हमने चार्ज का नंबर बढ़ा दिया है, अब 3 की जगह 4 है। अब जैसा हमने लास्ट सम किया था वैसे ये भी करना है, खाली 2 की जगह पे कितना आ गया है, 3। हाँ तो ये थर्ड का, अच्छा इसमें अलग है नंबर। ओके, नहीं नहीं नहीं, मेरा पुराना वाला है ना, तो उसमें थर्ड का थर्ड में ये है। ठीक है, तो थर्ड का फोर्थ करो, थर्ड का फोर्थ 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 फोर्थ। तो क्वेश्चन वही है, मेरे वाले में 3 है वो, तुम्हारे वाले में 4 है वो। कौन सा क्वेश्चन करना है? अरे 4 चार्ज वाला। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। 4 चार्जेस और 6 10⁻⁻8 कूलम मिला वो, बस वही वाला सम करना है, बस सिंपल विषय। तो बहाने मत ढूंढ बता बाजू बैठने के, तुम्हारा भी लॉन्ग डिस्टेंस चलेगा लंबा। इसमें भी थर्ड है देखो, इसमें भी 3 है। तो उसकी बुक क्या रहेगी? बस वेक्टर लगाना है, वेक्टर। कौन सा लो? हाँ, ये स्क्वायर में अपने पास 4 चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज 1, मान लो ये चार्ज 2, ये 3 और ये 4। नंबरिंग अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी सबका चार्ज सेम है, क्यू 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 और क्यू। अब ये जो स्क्वायर अपने को दिया है, इस स्क्वायर का जो साइड है वो बोला है 3 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर, मीटर बोला है, सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज का निकाल लो। जैसे मान लो मैं इसका निकालता हूं, ठीक है ना, ये वाले का, ये वाला चार्ज है, इसका निकालता हूं। अब देखो इसको छोड़ के, अब खुद से वही जो लास्ट सब में मैंने आप लोग को बोला था, खुद से क्वेश्चन करो कि इस पे फोर्स लगा कौन रहा है। ये और ये बराबर। मान लो ये 1 है, मान लो ये 2 है, मान लो ये 3 है। अब इसने फोर्स इस पे लगाया इस डायरेक्शन में, ये फोर्स कितना हो गया, F1, बरोबर कि नहीं, सही है। इसने इस पे फोर्स लगाया, कौन से डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्ट स्लाइड में आएगा, बराबर। ये फोर्स क्या होगा बच्चा अपना, F2, वेरी गुड। और ये इस पे फोर्स लगाएगा नीचे डायरेक्शन में, ये क्या होगा बेटा, F3। तो आप देख रहे हो कि एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 3। आपको रिजल्टेंट निकालना है, कैसे निकालोगे देखो। तो इस पे जो अपना टोटल फोर्स है F, वो सिंपली क्या होगा पता है, F1 प्लस F2 प्लस क्या रहेगा, F3। सबसे पहले क्या करो, F1 F2 को सॉल्व करो, सॉरी F1 F3 को सॉल्व करो। पहले देखो कि F1 और F3 जो हैं, F1 इस डायरेक्शन में और F3 इस डायरेक्शन में, बरोबर कि नहीं। हाँ, तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालो। कैसे रिजल्टेंट निकालोगे सर, यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दिस विल बी द रिजल्टेंट। मान लो इनका रिजल्टेंट आया F डैश, मान लो ना, मानने में क्या है, नाम कुछ ही बुला लो, अपना नाम दे देना, F डैश। कुछ वैल्यू आएगी, सॉल्व करने के बाद सॉल्विंग कैसे करना है बता चुका हूं। पहले F1 का वैल्यू निकालो, फिर F2 का वैल्यू निकालो, अंडर रूट में, जैसे लास्ट हम किया था वैसे F डैश निकाल लो। अब कहानी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि सर F1 और F2 का टोटल रिजल्टेंट निकाला, और वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। समझे आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि F1 और F3 सॉल्व करने के बाद इनका जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, बरोबर कि नहीं। और ये वाला फोर्स क्या है भाई मेरा, F डैश। अब F डैश और F2 क्या सेम डायरेक्शन में है, यस। तो सर जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो सिंपली क्या रहेगा, F डैश प्लस क्या रहेगा बेटा अपना F2। दोनों की वैल्यू को सीधे सीधे ऐड कर देना, बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सीधा वैल्यू ऐड हो जाएगा उनका। समझा क्या किया, ठीक है, अब लग जाओ काम पे।